Welcome back. We were in the previous class studying about the morphology of the frog, wherein we studied about how does a frog look, what is the shape, what is the size. Then we studied about the skin, the color, that is what does it looks like on the ventral and the ventral dorsal side. Its body is divided into head and trunk. We studied about head, what all parts the head is made up of, and even we studied about the trunk region. Now we are today supposed to start with the same thing, that is we will be studying that frog is a dioecious animal, wherein dioecious means that is sexes are separate as in the male and the female are different. So basically they show a sexual dimorphism, that is there is the external feature, their morphology. From the morphology itself, from the external feature itself, we can identify which is a male and which is a female. So basically what are the features of the male and the female frog? Now male has vocal sac, on the contrary female does not have the vocal sac. So when we talk about the vocal sac, तो क्या होता है कि भाई जो उनके नीचे के साइड पे when they croak, like जब वो आवाज़ देते हैं तो बाहर बल्ज पोर्शन करके निकलता है, तो वोकल सैक मेल में होते हैं और फीमेल में नहीं होते. फाइन. बेसिकली मेल में क्यों होता है? बिकॉज ड्यूरिंग द रेनी सीजन, ड्यूरिंग द मेटिंग सीजन, दे कॉल out for the females, and that is why they have vocal sac and female do not possesses the vocal sac. देन abdomen की जब हम बात करते हैं मेल की, तो वो थोड़ा ब्रॉड नहीं होता है, ऐसे नैरो होता है. और फीमेल के abdomen की बात करो तो वो थोड़ा कैसा होता है, थोड़ा मोटा होता है, ब्रॉड होता है. तो जैसे कि हमने पढ़ा था फ्रॉक का स्ट्रक्चर, तो ये रीजन जो होता है वो फीमेल के अंदर थोड़ा ब्रॉड होता है और मेल के अंदर नैरो होता है. फाइन. Similarly, male can change color, yellow color they can become of yellow color during the rainy season. On the contrary, female cannot do it during the season. Fine. So that is, female cannot change its color. On the contrary, male can change the color. Fine. Nuptial pad in males forelimb. जब हम forelimb और hind limbs हमने जो पढ़ा था, तो जो forelimbs होते हैं मेल के, उसमें जैसे कि ये लिम्ब है, तो ऐसे करके एक पैड लाइक जो थोड़ा सॉफ्ट और ऐसा मट्टी लाइक स्ट्रक्चर जैसा होता है, ऐसे बल्ज्ड आउट पोर्शन जैसा उनके फोर लिम्ब में, तो उन्हें हम क्या बोलेंगे? न्यूप्टियल पैड. क्या बोलेंगे? न्यूप्टियल पैड. दोनों ही तरफ न्यूप्टियल पैड होते हैं मेल के फोर लिम्ब में. फीमेल के फोर लिम्ब में ऐसा कोई न्यूप्टियल पैड नहीं होता. तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस न्यूप्टियल पैड? दैट इज दिस न्यूप्टियल पैड्स आर लाइक दे हेल्प द मेल टू होल्ड द फीमेल. फाइन. व्हेन देयर इज मेटिंग. So those are basically also termed to be as the copulatory pad. Those are also termed to be as the copulatory pad and also nuptial pad. So basically it is there for holding the female during the mating. Fine. So this is the difference between the male and the female frog that we can see from external view. Fine. Now moving ahead with the next thing, that is the digestive system of the frog. Fine. Yes. Now when we talk about the digestive system of the frog, it's somewhat very similar to that of ours. Fine. Now digestive system सबसे पहले कैसी होती है? तो complete digestive system है. मतलब में complete क्या क्या मतलब होता है? जो mouth से लेके anus तक होती है, तो उसे हम बोलेंगे complete digestive system. So mouth से शुरू होके anus तक होती है, और जो anus का part है उसमें इनमें क्या कहा जाता है? anus के part को cloaca कहा जाता है. So basically complete होती है जो mouth से लेके क्लोएका तक होती है या एनस तक होती है. देयरफॉर इट इज अ कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम. नाउ डाइजेस्टिव सिस्टम का मेन फंक्शन क्या होता है किसी भी डाइजेस्टिव सिस्टम का? तो इन ऑर्डर टू ब्रेक द कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस इनटू सिंपलर फॉर्म. तो जो फूड कॉम्प्लेक्स होता है उसको ये डाइजेस्टिव सिस्टम सिंपल फॉर्म में ब्रेक डाउन कर देगी. अब जब हम डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करते हैं, तो डाइजेस्टिव सिस्टम दो पार्ट्स में डिवाइडेड है. जैसे कि एक होता है एलिमेंट्री कैनल और उसके साथ होते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड्स. ये दोनों मिला के बनाती हैं डाइजेस्टिव सिस्टम. किन में? फ्रॉग में. हम में भी ऐसा ही होता है. Humans also possesses the same like that is the digestive system is divided into alimentary canal and digestive gland. So basically if we just have a look at its diagram, wherein we can see that
yes, it starts suppose if we have a look over here, पूरी digestive system को ऐसे बाहर extract करके दिखाया गया है। तो बेसिकली ये आप देख सकते हैं कि भाई ईसोफेगस हैं, बराबर, फिर साथ ही साथ हम देख सकते हैं स्टमक हैं, फिर साथ ही साथ हम देख सकते हैं इंटेस्टाइन है, फाइन, ये स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, फिर लास्ट में क्लोएका है, क्लोएकल एपर्चर है। सो बेसिकली ये पूरी सिस्टम जो बाहर एक्सट्रैक्ट करके निकाली गई है, तो हम इसको क्लियरली विजुअलाइज कर सकते हैं जो पिंक कलर में है, दैट इज़ द कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। फाइन, अब जब कंप्लीट सिस्टम की हम बात करते हैं तो ये क्या हो गया, ये जो पूरी पाइप लाइक स्ट्रक्चर है जो माउथ से लेके शुरू होके एनस तक जा रही है, क्लोएका तक जा रही है, तो उस पूरी सिस्टम को हम बोलेंगे एलिमेंट्री कैनाल। तो कैनाल मतलब में पाइप लाइक स्ट्रक्चर, तो ये होगी एलिमेंट्री कैनाल। अब दूसरी कौन सी चीज़ है जो डाइजेशन में हेल्प करती है, तो भाई ग्लैंड्स है। कौन कौन से ग्लैंड्स हैं, जैसे कि लीवर है, फिर गॉल ब्लैडर है, फिर तो ये सारी चीज़ें किन में आती है, तो ये सारी चीज़ें आती हैं इन द ग्लैंड्स ऑफ the digestive system, right? So that is what the digestive system is divided into alimentary canal and the digestive glands. अब जब हम alimentary canal की बात करेंगे तो वो कहाँ से शुरू होता है, माउथ से लेके जो माउथ में ओपनिंग होता है फ्रॉग का, जैसे कि ये माउथ है तो जो ओपनिंग है उस ओपनिंग को हम क्या बोलेंगे, जैसे कि ये माउथ है तो फिर जो ओपनिंग होता है उस ओपनिंग को हम बोलते हैं बकल कैविटी। सो बकल कैविटी उधर से होके कहाँ जाएगा, तो जैसे कि समझ लो है ईसोफेगस के बाद कहाँ जाएगा, ईसोफेगस से कहाँ जाएगा, स्टमक से इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन से रेक्टम, रेक्टम से क्लोएका। सो इधर भी हम एक बार देख लेते हैं, जैसे कि होगा माउथ के अंदर क्या होता है, हाँ, तो जैसे माउथ होगा तो माउथ के अंदर जो स्पेस होगी उसको हम बोलेंगे बकल कैविटी, फिर ये है ईसोफेगस, फिर है स्टमक, फिर है इंटेस्टाइन, तो ये रहा इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन के बाद है रेक्टम, तो वो भी रहा, फिर लास्ट पार्ट जो है क्लोएका, और लास्ट क्लोएका का जो ओपनिंग होगा क्लोएकल एपर्चर। सो बेसिकली ये है एलिमेंट्री कैनाल। तो एलिमेंट्री कैनाल के आपको सब पार्ट्स याद होने चाहिए, माउथ से लेके क्लोएका तक। फाइन, माउथ, ईसोफेगस, स्टमक, इंटेस्टाइन, देन वी हैव रेक्टम एंड देन वी हैव क्लोएका एंडिंग इन क्लोएकल एपर्चर। सो ये है एलिमेंट्री कैनाल की पूरी जो लाइक चेन है, वो कैनाल का पूरा स्ट्रक्चर। अब जब हम एलिमेंट्री कैनाल की बात करते हैं तो जो इंटेस्टाइन रहता है, जैसे कि हमारे में इंटेस्टाइन काफ़ी लंबा होता है, फिर हम बात कर ले सिर्फ ऐसे एनिमल्स की जो प्लांट हर्बीवर्स की बात कर ले जो सिर्फ प्लांट पे फीड करते हैं, तो उनका बहुत लंबा इंटेस्टाइन होता है। क्यों? क्योंकि वो लोग प्लांट्स खाते हैं, तो सिर्फ प्लांट्स खाएंगे उसका मतलब क्या होता है, उसमें बहुत सेल्यूलोज होता है, और सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने में बहुत टाइम लगता है, उसको बहुत डाइजेशन में टाइम लगता है। इसीलिए जो भी हर्बीवर्स होते हैं जो सिर्फ प्लांट्स खाते हैं उनमें इंटेस्टाइन लंबा होता है। फाइन, इंटेस्टाइन लंबा होगा मतलब में पूरी एलिमेंट्री कैनाल लंबी है। बट जब हम फ्रॉग की बात करते हैं तो फ्रॉग एक कार्निवोर्स एनिमल है। कार्निवोर मतलब में इट डजंट फीड ऑन द प्लांट बट इट फीड्स ऑन दी अदर एनिमल्स। फाइन, सो कार्निवोर है। तो जब हम कार्निवोर की बात करते हैं तो उनमें जो प्रोटीन वगैरह होता है वो जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है, इसीलिए उनका इंटेस्टाइन भी छोटा होता है। तो पूरी एलिमेंट्री कैनाल, पूरी जो एलिमेंट्री कैनाल है वो भी कैसी हो जाएगी, वो भी छोटी हो जाएगी। सो बेसिकली द एलिमेंट्री कैनाल ऑफ द फ्रॉग इज शॉर्टर बिकॉज फ्रॉग इज अ कार्निवोर, एंड कार्निवोर दैट इज जो भी वो लोग खाते हैं वो उसमें प्रोटीन कंटेंट होता है, तो प्रोटीन डाइजेस्ट करने में क्या होता है, सेल्यूलोज से इजीली वो डाइजेस्टेबल होता है, इसीलिए उनका इंटेस्टाइन रिड्यूस्ड होता है। अब जैसे कि हमने एलिमेंट्री पे कैनाल के पार्ट पढ़ लिए, माउथ, बकल कैविटी, ईसोफेगस, स्टमक, इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड देन क्लोएका। फाइन, माउथ टू क्लोएका दैट इज द कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल। अब हम जब डाइजेस्टिव ग्लैंड्स की बात करेंगे तो कौन कौन से ग्लैंड्स हैं इनके अंदर, लीवर, then we have pancreas, and stomach also is a organ but also secretes various enzymes or various materials, and then I have included in glands. फाइन, सो बेसिकली लीवर की बात करें तो लीवर क्या सीक्रेट करता है, फ्रॉग का जो लीवर है वो सीक्रेट करता है बाइल जूस। कौन सा जूस, बाइल जूस। सो लीवर से होके वो कहाँ स्टोर होगा, गॉल ब्लैडर में स्टोर होगा। तो जैसे कि हम देख सकते हैं कि जो लीवर है, फाइन, इस लीवर में से क्या निकलेगा, बाइल जूस, और वो बाइल जूस जाके कहाँ स्टोर होगा, तो ये ग्रीन कलर का जो है गॉल ब्लैडर में जाके स्टोर होगा। आपको ये याद रखना है। फाइन, लीवर सीक्रेट करता है बाइल जो कहाँ जाएगा, गॉल ब्लैडर में जाके स्टोर होगा।
अब पेंक्रियाज की बात कर ले हम, तो पेंक्रियाज जो होते हैं वो क्या सीक्रेट करते हैं, तो पेंक्रियाटिक जूस। लीवर सीक्रेट करता है बाइल, पेंक्रियाज सीक्रेट करते हैं पेंक्रियाटिक जूस जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं। फाइन, इनके अंदर ये पेंक्रियाटिक जूस के अंदर क्या होता है, तो अलग अलग तरह तरह के एंजाइम्स होते हैं जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन वगैरह को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। अब रह गया है स्टमक। तो स्टमक की जब हम बात करें तो स्टमक में से क्या सीक्रेट होता है, तो स्टमक में से सीक्रेट होता है HCl, देन गैस्ट्रिक जूसेस एंड म्यूकस। एंड क्या सीक्रेट होता है, म्यूकस। तो जब हम HCl की बात करते हैं, फाइन, we shall study about its function when it while discussing the pathway of the digestive system. So basically stomach में से HCl रिलीज होता है, जो क्या करता है, जो स्टमक में से फ्रॉग के मुंह में जो भी खाना आया हो उसके अंदर जो भी भाई बैक्टीरिया वगैरह रह गया हो, तो ये HCl एसिडिक होता है, इसीलिए स्टमक में कोई बैक्टीरिया वगैरह आ जाए तो उसको किल करने में काम करेगा। अब ये एसिडिक है, जब ये एसिडिक रहेगा तभी जो गैस्ट्रिक जूसेस रिलीज हो रहे हैं, तो कौन से गैस्ट्रिक जूस, पेप्सिनोजन, तभी ये पेप्सिनोजन क्या होगा, एक्टिवेट होगा। सो बेसिकली ये जो HCl है उनका दो काम है, आपको सिर्फ याद रखना है, ये HCl बैक्टीरिया वगैरह जो होगा उसको किल कर देगा, और यही HCl जो है वो पेप्सिनोजन जो है, क्या है, पेप्सिनोजन। पेप्सिनोजन क्या है, तो गैस्ट्रिक जूसेस में से एक है पेप्सिनोजन। तो पेप्सिनोजन को एक्टिव कौन करेगा, ये तो इनएक्टिव है, तो उनको एक्टिवेट करेगा HCl। तो HCl का दो फंक्शन है। और म्यूकस, तो म्यूकस क्यों होना चाहिए स्टमक के अंदर, ऑब्वियसली जब बात करो स्टमक है तो अब ये जो स्टमक की वॉल है वो कंटिन्यूस HCl सीक्रेट होगा तो कोरोड हो जाएगी। सो इसीलिए इधर क्या होता है, म्यूकस होता है। तो ये म्यूकस क्या करता है, स्टमक की वॉल को प्रोटेक्ट करके रखता है। सो बेसिकली एलिमेंट्री कैनल स्टार्ट्स फ्रॉम माउथ टू द क्लोएका, एंड्स इन क्लोएका। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स है लीवर जो बाइल जूस सीक्रेट करते हैं, पेंक्रियाज जो पेंक्रियाटिक जूस सीक्रेट करते हैं, और स्टमक जो क्या सीक्रेट करते हैं, HCl, गैस्ट्रिक जूसेस एंड म्यूकस। फाइन, अब ये गैस्ट्रिक जूस कौन सा है, तो पेप्सिनोजन समझ लो। फाइन, पेप्सिनोजन वो क्या है, वो एक एंजाइम है। फाइन, चलो वी शैल बी टॉकिंग अबाउट द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, कि ये डाइजेशन की पूरी प्रोसेस होती कैसे है। तो जैसे हम बात करते हैं, सबसे पहला फूड बॉडी फ्रॉग की बॉडी में आएगा तो कहाँ जाएगा, ऑब्वियसली माउथ। तो समझ लीजिए माउथ है, तो माउथ में कौन कौन से पोर्शन होते हैं, ये लोअर जॉ है और ये अपर जॉ है। तो फिर हम जब लोअर जॉ की बात कर रहे हैं तो इधर से अटैच होती है क्या, टंग। फाइन, और उसकी जैसे कि समझ लो ये लोअर वाला जॉ है, फाइन, और ये अपर वाला जॉ है, ये ऊपर का जॉ है, उसको ऐसे कट ओपन करके हमने ऐसे दिखाया है। फाइन, तो इधर से क्या अटैच्ड होता है, सॉरी इधर से, सॉरी, तो इधर क्या होता है, तो दैट इज बाइफीड टंग। बाइफीड टंग मतलब में क्या होती है, जो दो पार्ट में आगे से डिवाइड होती है। फाइन, ऐसी पूरी नहीं है, कैसी है, बाइफिड, ऐसे डिवाइड हो जाती है वो आगे जाके, तो दैट इज बाइफिड टंग। वो किस में होता है, लोअर वाले जॉ में, इसमें इधर से अटैच्ड होता है लोअर जॉ। अब जब हम अपर जॉ की बात करते हैं तो अपर जॉ में दो टीथ होते हैं, क्या होते हैं, दो टीथ होते हैं। जैसे कि अपर जॉ की बात करो तो इधर दो टीथ होते हैं, तो पॉइंटेड शॉर्ट टीथ, दोज आर टर्म टू बी एज द मैक्सिलरी टीथ होते हैं। फाइन, अब समझ आपको समझ में आ गया होगा, लोअर जॉ में अटैच होती है क्या, तो टंग, और ऊपर की तरफ क्या अटैच होते हैं, दो टीथ होते हैं, मैक्सिलरी टीथ। अब जब हम अपर जॉ की बात करते हैं, जैसे कि ये वाला ऊपर वाला जो है, तो इनके ऊपर क्या होगी, आईज होती है, अपर जॉ के ऊपर आइज होती है। तो आइज इतनी बड़ी बड़ी है हमें पता है, तो उसका बल्ज्ड पोर्शन भी हमें अंदर तक की तरफ देखने को मिलेगा। फाइन, जैसे कि समझ लो इसके ऊपर बड़े बड़े ये कोई पेपर है, फाइन, तो पेपर के ऊपर आपने बॉल लगा दिए हैं और बॉल हैवी है, तो उनका इम्प्रिंट थोड़ा नीचे से भी वो बल्ज लगेगा, वो पेपर के नीचे से भी बल्ज लगेगा। तो वही सेम थिंग है कि अंदर की तरफ हमें क्या देखने को मिलेगा, ऐसे इसके ऊपर आइज होती है। तो जैसे समझ लो कि ये आइज है, तो ये जब ओपन करेगा तो उसके अपर जॉ के अंदर इसका थोड़ा ऐसा लगेगा कि अंदर भी इनबल्जिंग हो रखा है। फाइन, सो बेसिकली अपर जॉ की बात करें तो उसमें टीथ होते हैं, इनबल्जिंग ऑफ द आई जैसे स्ट्रक्चर दिखते हैं, ऐसे जैसे कि भाई ऐसे स्ट्रक्चर दिख रहे हैं। फाइन, ऑल्सो सीन इन द अपर जॉ। नाउ इन दोनों जॉ के बीच, अपर जॉ और लोअर जॉ के बीच, फाइन क्या होता है, यूस्टैचियन एपर्चर, क्या होता है,
यूस्टैचियन एपर्चर बेसिकली क्या होता है, जो अपर जॉ और जो लोअर जॉ होता है, दो जो जॉ होता है उनके बीच ऐसा होल लाइक स्ट्रक्चर होता है जो फेरिंग्स को, इसके बाद क्या आएगा तो फेरिंग्स आएगा, फेरिंग्स को और अपने ईयर को कनेक्ट करता है, जिनसे क्या होता है एयर का बैलेंस रहता है और हमारी बॉडी एक पॉस्चर में रहती है पर्टिकुलर। फाइन, तो एयर प्रेशर उससे क्या रहेगा, बैलेंस रहेगा। सो बेसिकली इट कनेक्ट्स द फेरिंग्स एंड द ईयर टू बैलेंस द एयर प्रेशर। अब उसके बाद माउथ के तुरंत बाद क्या होगा, और एक चीज़ हम देखेंगे, हाँ बाद में देखते हैं, चलो फिर माउथ के तुरंत बाद क्या होगा, तो भाई फेरिंग्स होगा। क्या होगा, माउथ जैसे ही ख़त्म होता है, अपर जॉ लोअर जॉ, उसके अंदर टंग है, टीथ है, बकल कैविटी है, फिर उसके एग्जैक्ट बीच में होता है यूस्टैचियन एपर्चर। अब नीचे क्या होगा, तो फेरिंग्स होगा। अब फेरिंग्स इतना छोटा पाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है, बहुत छोटा होता है, सो दैट इज ऑल्सो टर्म टू बी एस, जो बकल कैविटी से कनेक्टेड है, ये बकल कैविटी है और उसके नीचे फेरिंग्स होता है, बहुत छोटी फेरिंग्स होती है और इससे बकल कैविटी से कनेक्टेड है, इसीलिए इसको हम बोलेंगे बकोफेरेंजियल कैविटी। क्या बोलेंगे, बकोफेरेंजियल कैविटी। जैसे कि ये अपर जॉ है, लोअर जॉ है, फिर उसके बाद होगी फेरिंग्स। फाइन, अब फेरिंग्स और ये बकल कैविटी, ये जो जगह है और ये फेरिंग्स दोनों कनेक्टेड है, इसीलिए उसको हम बोलेंगे बकोफेरेंजियल कैविटी। फेरिंग्स भी बोल सकते हैं, बकोफेरेंजियल कैविटी जो होती है, कैविटी जो होती है उसको बकोफेरेंजियल कैविटी बोलेंगे। फाइन, अब ये जो है फेरिंग्स जो होता है, इट इज़ अ कॉमन पाइप लाइक स्ट्रक्चर फॉर द पैसेज ऑफ द फूड एज वेल एज द एयर। अब फूड आएगा तो भी इधर से आएगा, एयर आएगा तो भी इधर से आएगी। फाइन, बट बेसिकली जब हम बात करें फेरिंग से नीचे, फिर फेरिंग से नीचे उसका डिफ्रेंशिएट होता है कि भाई फूड को इधर जाना है और एयर को इधर जाना है। अब समझ लो, फिर होता है गलेट। ये फेरिंग्स के नीचे बहुत छोटा, जैसे कि ये समझ लो ये ओपनिंग लाइक स्ट्रक्चर है जिसमें से तुरंत ओपन होगी फिर ईसोफेगस। तो ये जो स्ट्रक्चर है उसको हम बोलेंगे गलेट। द ओपनिंग ऑफ द ईसोफेगस इज टर्म टू बी एज गलेट। सो बेसिकली यू कैन सी ओवर हियर, माउथ खत्म हो रहा है, फिर ये ईसोफेगस स्टार्ट हो रहा है, तो ईसोफेगस के को जो ऊपर का स्ट्रक्चर है उसको हम बोलेंगे गलेट। फाइन, उसके बाद क्या आएगा, ऑब्वियसली ईसोफेगस, तो हमें ये दिख रही है ईसोफेगस। तो ईसोफेगस क्या है, एक पाइप होती है, लंबी पाइप होती है जो मस्कुलर होती है, जिनमें से फूड पास होगा तो वो पेरिस्टल्टिक मूवमेंट करेगी। अब पेरिस्टल्टिक मूवमेंट क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, ऐसे करते करते वो क्या करेगी, फूड को नीचे पास करेगी। तो ईसोफेगस इज नथिंग बट अ मस्कुलर ट्यूब long that leads to the stomach. Obviously it is meeting where, that is it is meeting the stomach. Esophagus से बाद में कौन सा ऑर्गन है, स्टमक है। कौन सी मूवमेंट परफॉर्म करती है, पेरिस्टल्टिक मूवमेंट करती है। उसका काम क्या है, उसका काम है माउथ और स्टमक को कनेक्ट करना। दूसरा क्या काम है, माउथ में से जो फूड आता है उसको स्टमक तक पहुंचाना। फाइन, सो बेसिकली इट इज द पैसेज फॉर द फूड। एंड वन मोर थिंग टू रिमेंबर इज, वी हैव ऑलरेडी स्टडीड आई सपोज, फ्रॉग की जब हम बात करें तो वो कभी पानी पीते नहीं है, वो क्या करते हैं, अपने बॉडी के स्किन से ही पानी को बॉडी में एंटर करवाते हैं। फाइन, सिमिलरली हम जब स्टमक की बात करेंगे तो स्टमक कैसा स्ट्रक्चर है, जे शेप स्ट्रक्चर है। कैसा स्ट्रक्चर है, जे जैसा स्ट्रक्चर है। एंड हैज़ गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। उसमें क्या है, तो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं, जो हमने आगे पढ़ा स्टमक में होते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। जे शेप है, गैस्ट्रिक ग्लैंड है। अब गैस्ट्रिक ग्लैंड है तो वो क्या सीक्रेट करेगी, गैस्ट्रिक ग्लैंड सीक्रेट करती है गैस्ट्रिक जूसेस। फाइन, जिनमें आ जाता है पेप्सिनोजन। फिर गैस्ट्रिक ग्लैंड दूसरा क्या सीक्रेट करेगी, म्यूकस। और गैस्ट्रिक ग्लैंड दूसरा क्या सीक्रेट करेगी, HCl। तो स्टमक में कौन सा ग्लैंड है, तो स्टमक में हम लिखेंगे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। अब ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स क्या सीक्रेट करेंगे, ये गैस्ट्रिक ग्लैंड सीक्रेट करेंगे HCl, देन गैस्ट्रिक जूसेस। तो जूसेस में क्या होगा, पेप्सिनोजन एंड म्यूकस। अब HCl का फंक्शन हमने देख लिया, बैक्टीरिया को, फूड में बैक्टीरिया है या जर्म्स हैं तो उसको किल करना। दूसरा HCl का क्या काम है, इट्स पेप्सिनोजन को एक्टिव पेप्सिन में कन्वर्ट करना। और म्यूकस का क्या काम है, तो स्टमक को भाई एसिड की कोरोजन से बचाना। फाइन, सो बेसिकली
हाँ, हम बात कर रहे थे हाँ स्टमक की जो जे शेप स्ट्रक्चर है उसमें गैस्ट्रिक ग्लैंड होते हैं और वो गैस्ट्रिक जूस सीक्रेट करता है, म्यूकस सीक्रेट करता है और HCl सीक्रेट करता है। फाइन, और हमने सारे के फंक्शन भी देख लिए। अब स्टमक के बाद क्या आता है, तो ऑब्वियसली स्टमक के बाद आता है इंटेस्टाइन। तो दोनों ही इंटेस्टाइन इसमें होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन एज वेल एज द लार्ज इंटेस्टाइन। When we talk about the small intestine, the small intestine, as we have already talked in the frog, is short, it is reduced. So why is this intestine reduced? Because it is a carnivore, fine, and it does not have the cellulose to be digested, and that is why it's short. When we talk about this small intestine, it is further divided into two parts, that is duodenum and ileum. Fine, duodenum and the ileum. So basically when we talk about the small intestine, fine, the small intestine has this U-shaped structure which is termed to be as duodenum, and the other part that you can see is nothing but the, yes it is nothing but the ileum. So basically when we talk about the duodenum, the U-shaped structure which emerges out of the J-shaped, sorry, so basically the U-shaped structure, like this is the stomach, say. Now from here the U-shaped structure which arises, that is nothing but the duodenum. So when we talk about this duodenum, fine, इट डज, उनका ओवरऑल फंक्शन ये जो डुओडेनम का है वो क्या होता है, डाइजेशन ऑफ फैट्स, प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। सो हमने क्या देखा कि स्टमक के अंदर हमने बात की कि गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं जिनमें HCl, पेप्सिनोजन और म्यूकस होता है। तो हम एक बारी और देख लेते हैं, जैसे कि यस, जब हम स्टमक की बात कर रहे थे तो उसमें HCl होता है, पेप्सिनोजन होता है और म्यूकस होता है। HCl और म्यूकस का हमने फंक्शन देख लिया। अब ये जो पेप्सिनोजन है जिसकी हम बात कर रहे थे, फाइन, तो ये जो पेप्सिनोजन है ये HCl उसको एक्टिवेट करेगा और इसको कन्वर्ट करेगा पेप्सिन में। अब वो पेप्सिन क्या काम करेगा, पेप्सिन इज एन एंजाइम विच वर्क्स ऑन प्रोटीन्स विच डिग्रेड्स द प्रोटीन्स विच दैट इज ब्रेक डाउन द प्रोटीन्स। अब वो प्रोटीन्स को वो क्या करेगा, ब्रेक डाउन करेगा। अब प्रोटीन, सारे के सारे प्रोटीन इधर क्या होंगे, स्टमक के अंदर डाइजेस्ट नहीं होंगे। कुछ ज़्यादा प्रोटीन्स क्या होता है कि वो इंटेस्टाइन में भी चले जाते हैं। तो देयरफॉर इंटेस्टाइन के अंदर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट सबका डाइजेशन होता है। फैट की जब हम बात करते हैं तब फैट का डाइजेशन ना ही माउथ में होता है ना ही स्टमक में होता है। फाइन, सिमिलरली जब प्रोटीन की बात करते हैं तो प्रोटीन का डाइजेशन स्टमक से शुरू हो जाता है क्योंकि स्टमक में होते हैं पेप्सिनोजन, मतलब में पेप्सिन। सिमिलरली कार्बोहाइड्रेट की जब हम बात करते हैं तो कार्बोहाइड्रेट का जो हम फ्रॉग की जब बात करते हैं तो कार्बोहाइड्रेट का जो डाइजेशन है वो स्मॉल इंटेस्टाइन से शुरू होता है। फाइन, तो जब हम डिओडेनम की बात कर रहे हैं तो डिओडेनम जो है वो क्या करेगा, डाइजेशन ऑफ फैट्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स एक्सेट्रा। अब इस डिओडेनम के अंदर हमने क्या पढ़ा था, लीवर होता है। फाइन, जैसे कि उनके लीवर होता है। अब ये जो लीवर होता है वो लीवर क्या करता है, तो लीवर बाइल जूस सीक्रेट करता है और वो कहाँ डालता है बाइल जूस को, गॉल ब्लैडर में। कहाँ डालता है, गॉल ब्लैडर में। अब गॉल ब्लैडर उस सीक्रेशन को, बाइल को डिओडेनम तक लेके आती है। फाइन, क्या होता है, लीवर का जो सीक्रेशन होता है वो गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है और वो फिर डक्ट के थ्रू डिओडेनम में ट्रांसफ़र होता है। फाइन, सिमिलरली हम बात करेंगे दूसरे ग्लैंड की, जैसे कि दूसरे ग्लैंड की बात करेंगे तो हमने क्या बात की थी, पैंक्रियाज की बात की थी। अब ये जो पैंक्रियाज होते हैं वो भी क्या करते हैं, वे भी सेम वही चीज़ करते हैं कि पैंक्रियाज जो रिलीज़ करते हैं वो क्या होता है, पैंक्रियाटिक जूस। क्या रिलीज़ करते हैं, पैंक्रियाटिक जूस। तो जो पैंक्रियाज होता है, जैसे कि समझ लो इधर पैंक्रियाज है, तो ये जो पैंक्रियाज है वो सीक्रेट करता है पैंक्रियाटिक जूस। अब वो कैसे सीक्रेट करेगा, तो पैंक्रियाटिक डक्ट से। जैसे कि लीवर जो सीक्रेट कर रहा है वो इस डक्ट से आ रहा है, तो इस डक्ट को हम बोलेंगे हिपैटिक डक्ट। कौन सा डक्ट, लीवर से कनेक्टेड हिपैटिक डक्ट। सो लीवर में से जो आ रहा है उसको हम नाम देंगे हिपैटिक डक्ट। तो ये वाला जो डक्ट है उसको हमने क्या नाम दिया, हिपैटिक डक्ट। सिमिलरली पैंक्रिया में से जो डक्ट आ रहा है, समझ लो इसको ज्वाइन कर रहा है, तो उस डक्ट को हम बोलेंगे पैंक्रियाटिक डक्ट। क्या बोलेंगे, पैंक्रियाटिक डक्ट। अब ये जो कॉमन दोनों मिला के कहाँ जा रहा है, तो डिओडेनम में जा रहा है। दोनों मिला के कहाँ जा रहा है, डिओडेनम में। सो जैसे कि हम एक बार ड्रॉ कर लेते हैं वापस, जैसे कि समझ लो ये लीवर है, तो लीवर एक डक्ट से
डियोडेनम में कुछ डालती हैं। सिमिलरली पैंक्रियाज है, तो पैंक्रियाज भी क्या डालते हैं, पैंक्रियाटिक जूस लेके आते हैं। तो ये जो लीवर का डक्ट है उसको बोलेंगे हिपैटिक डक्ट, वैसे ही जो पैंक्रियाज का डक्ट है उसको बोलेंगे पैंक्रियाटिक डक्ट। अब लीवर क्या लेके आ रहा है, बाइल जूस, पैंक्रियाज क्या लेके आ रहा है, पैंक्रियाटिक जूस। दोनों मिल के अपना सीक्रीशन किस में डालते हैं, डियोडेनम में डालते हैं। किस में डालते हैं, डियोडेनम में। फाइन, यस, किस में डालेंगे, डियोडेनम। तो ये जो कॉमन डक्ट हुआ उसको क्या बोलेंगे, ये है हिपैटिक डक्ट, ये है पैंक्रियाटिक डक्ट। अब दोनों मिल जाते हैं और कॉमन डक्ट जो ये बन जाता है उसको बोलेंगे हिपैटो पैंक्रियाटिक डक्ट। क्या बोलेंगे, वेरी सिंपल, हिपैटो पैंक्रियाटिक डक्ट। दिस इज द हिपैटिक डक्ट, दिस इज द पैंक्रियाटिक डक्ट। दोनों मिल जाते हैं और दोनों साथ ही साथ अपना सिक्रीशन डियोडेनम में डालते हैं, तो हिपैटो पैंक्रियाटिक डक्ट। तो क्या हो जाता है, डियोडेनम के अंदर अब कुछ जूसेस आएंगे, पैंक्रियाटिक जूस और बाइल जूस। अब बेसिकली मैं इन दोनों का आपको बताती हूँ। जैसे कि पैंक्रियाटिक जूस जो होता है, वो पैंक्रियाटिक जूस प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट को क्या करेगा, ब्रेक डाउन करने में हेल्प करेगा। जितने भी फूड के अंदर प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट होंगे उनको ब्रेक डाउन करने में हेल्प करेगा। वैसे ही जो बाइल जूस डियोडेनम में जा रहा है वो क्या करेगा, वो जो फैट होता है खाने में उसको इमल्सिफाई करेगा। जब फैट इमल्सिफाई होंगे तभी उसके ग्लोब्यूल्स बनेंगे और तभी फिर वो आगे डाइजेस्ट हो पाएगा। सो बेसिकली डियोडेनम की जब हम बात करते हैं तो वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का, क्योंकि उधर टोटल फैट, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है। फाइन, अब हमने जो डक्ट की बात की, जो लीवर है वो एक ग्लैंड है, पैंक्रिया है वो एक ग्लैंड है। लीवर क्या लेके आती है, तो भाई वो लेके आती है बाइल जूस। फाइन, और वो जिस पाइप से लेके आती है उसको हम बोलेंगे हिपैटिक डक्ट। और जो बाइल जूस होती है वो क्या करती है, फैट को इमल्सिफाई करती है। फाइन, इमल्सिफाई करने का मतलब है देन ऑन इट कैन बी डाइजेस्टेड बिकॉज इट्स देन मिक्सड अलोंग विद द वाटर। फाइन, इमल्सिफिकेशन का काम करती है। देन ऑन वी टॉक अबाउट द पैंक्रिया। तो पैंक्रियाज जो है वो पैंक्रियाटिक डक्ट से क्या लेके आते हैं, पैंक्रियाटिक जूस। अब वो जो पैंक्रियाटिक जूस है वो क्या करते हैं, डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स, प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने में हेल्प करेंगे। सो बेसिकली हमें क्या याद रखना है कि भाई ये दोनों जो जूसेस हैं, बाइल जूस और पैंक्रियाटिक जूस, वो डियोडेनम में आ रहे हैं। अब डियोडेनम क्या कर रहा है, तो डियोडेनम डज द डाइजेशन ऑफ फैट्स विद द हेल्प ऑफ बाइल and digestion of proteins and carbohydrate with the help of pancreatic juice. Fine, तो this is all about the duodenum. अब duodenum से आगे होके क्या जाता है, तो आगे होके और curving like structure, जैसे कि ये जो structure है उसको बोलेंगे इलियम। क्या बोलते हैं हम उसको, इलियम बोलेंगे। अब जो ये इलियम होता है, जैसे कि हम डायग्राम में देख सकते हैं कि स्टमक से होके ये था इंटेस्टाइन। अब इंटेस्टाइन की बात करो तो ये पोर्शन था डियोडेनम पोर्शन, जो यू शेप पोर्शन है। अब बाकी जो कॉल स्ट्रक्चर है तो दैट इज नथिंग, द पार्ट इज टर्म टू बी एज इलियम। अब ये जब हम इलियम की बात करते हैं तो थोड़ा सा अब्जॉर्प्शन, वो क्या करती है, अब्जॉर्प्शन। अब फूड तो डाइजेस्ट हो चुका है, अब फूड डाइजेस्ट होने के बाद डाइजेस्टिव सिस्टम में थोड़ी रहेगा, वो उधर से धीरे धीरे अब्जॉर्ब होकर बाहर निकलेगा अपनी बॉडी के अंदर जाने के लिए। फाइन, तो वो जो बाहर अब्जॉर्ब होता है वो कौन करता है, इलियम। सो अब्जॉर्प्शन एंड थोड़ा बहुत जो खाना डाइजेस्ट होने में रह जाता है वो भी इलियम उसको डाइजेस्ट करने में मदद करता है। अब वो कैसे मदद करेगा, तो इलियम में से सीक्रेट होते हैं इंटेस्टिनल जूसेस। क्या सीक्रेट होते हैं, इंटेस्टिनल जूसेस। फाइन, तो इंटेस्टिनल जूसेस सीक्रेट होते हैं, जो जूसेस में अलग अलग तरीके के एंजाइम्स होते हैं जिनकी वजह से वो डाइजेशन में हेल्प करता है। अब डाइजेस्टेड फूड्स जो है वो क्या, कैसे अब्जॉर्ब होंगे, तो इलियम की हम जब बात करते हैं तो इलियम के अंदर जो सेल्स होते हैं, जैसे कि हम बात कर लें तो ये जो इलियम है उसमें माइक्रोविलाई लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। जैसे ये बहुत फोल्ड वाले स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम क्या बोलेंगे, माइक्रोविलाई, ऐसे। फाइन, फोल्डेड स्ट्रक्चर, तो उसको हम बोलेंगे माइक्रोविलाई। अब ये जो माइक्रोविलाई है वो क्या करेगी, ये जो माइक्रोविलाई है वो जो डाइजेस्टेड फूड है इसकी वजह से सरफेस एरिया इंक्रीज होगा और उसकी वजह से ज़्यादा फूड अपने बॉडी, सॉरी नॉट इन आवर बॉडी, इन द फ्रॉग्स बॉडी इट कुड बी अब्जॉर्ब्ड। फाइन, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं लार्ज इंटेस्टाइन की। सो जो बाकी रह गया पार्ट है तो वो क्या होता है, तो दैट इज़ नथिंग बट द लार्ज इंटेस्टाइन। अब जब लार्ज इंटेस्टाइन की बात करते हैं तो लार्ज इंटेस्टाइन क्या करता है, तो उस
उसका उसके अंदर एक पार्ट होता है जैसे कि कोलॉन, क्या नाम दिया गया है, कोलॉन, जो जैसे कि थोड़ा सा ब्रॉड होता है और वो भी सेम चीज़ करता है, जो फूड डाइजेस्ट हो गया उसको ऑब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। फिर नेक्स्ट पार्ट होता है रेक्टम, क्या पार्ट होता है, रेक्टम, जो हम ये देख सकते हैं। तो ये वाला जो पोर्शन है, तो लार्ज इंटेस्टाइन के बाद तुरंत वाला जो पोर्शन होता है उसको हम बोलेंगे रेक्टम। फाइन, अब ये जो रेक्टम होता है वो क्या करता है, स्टोर्स द फीकल मैटर, जो भी फूड अब्जॉर्ब हो गया है, समझ लो जो भी फूड इधर डाइजेस्ट हुआ है, डिओडेनम में डाइजेस्ट हुआ है, वो सारा फूड ये जो बाकी की जगह है उसमें से क्या होगा, अब्जॉर्ब होगा बॉडी के अंदर, फ्रॉग के बॉडी के अंदर अब्जॉर्ब हो जाएगा। अब जो फूड जो डाइजेस्ट नहीं हुआ है, जो अब्जॉर्ब नहीं हो सकता है, वो सारा फूड इधर जमा होगा, उसको हम बोलेंगे रेक्टम। तो फीकल मैटर जो होता है वो उधर स्टोर होगा। फाइन, फिर क्लोएका, क्लोएका क्या है, तो भाई इट इज एन अनडाइजेस्टेड सॉलिड वेस्ट मूव्स इनटू द रेक्टम एंड पासेस आउट थ्रू द कोलॉन। सो बेसिकली जो भी फूड, जो अनडाइजेस्टेड फूड है जो रेक्टम में स्टोर होता है, वो बाहर कहाँ से निकलता है, तो इट रिलीजेस आउट ऑफ द बॉडी फ्रॉम अ पाइप लाइक स्ट्रक्चर, जो ये स्ट्रक्चर हम देख सकते हैं। तो दैट इज नथिंग बट द क्लोएका, एंड द क्लोएका ओपन्स इनटू अ स्मॉल पोर विच इज टर्म्ड टू बी एज द क्लोएकल एपर्चर। उसको हम क्या बोलेंगे, क्लोएकल एपर्चर। फाइन, अब एक चीज़ जो आपको याद रखनी है, दैट इज जो क्लोएका है फ्रॉग के अंदर, इट इज़ अ कॉमन पैसेज इन बोथ मेल एंड फीमेल फॉर द रिलीज ऑफ द यूरिन। जो उन फ्रॉग के बॉडी में यूरिन निकलता है वो भी क्लोएका से बाहर रिलीज होता है। वैसे ही डाइजेस्टिव सिस्टम का भी जो एंड पार्ट है, जो भी फीकल मैटर निकलता है वो भी इधर से निकलता है। अब मेल फ्रॉग की बात करो तो स्पर्म्स भी वही क्लोएका से बाहर रिलीज होते हैं। फाइन, और फीमेल की जब हम बात करते हैं तो जो एग्स होते हैं वे भी यही पोजिशन से क्या होते हैं, दे कम आउट। फाइन, सो बेसिकली दिस इज अ कॉमन ट्रैक, दिस इज अ कॉमन track for the reproductive structures, for the to come out, for the urine to come out, and as well as for the fecal matter to release out of the body. Fine, so hopefully you have understood about the digestive system, which starts from mouth, upper jaw, lower jaw. Fine, और upper jaw और lower jaw के बीच एक स्टैचिन ऐसे होल होता है जो ईयर और जो थिम्फेनस होता है इनका, और फेरिंग्स को कनेक्ट करता है। फिर इधर फेरिंग्स होती हैं, फेरिंग्स के बाद समझ लो क्या होता है, तो ईसोफेगस होती है, ईसोफेगस कनेक्ट करता है स्टमक को, स्टमक कनेक्ट करता है इंटेस्टाइन को, इंटेस्टाइन की बात करें तो स्मॉल एंड लार्ज, स्मॉल की बात करें तो स्मॉल में क्या होता है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है डिओडेनम एंड इलियम, और लार्ज की बात करो तो उसमें होता है कोलॉन। फाइन, उसके बाद एक स्ट्रक्चर होता है दैट इज रेक्टम, जो फीकल मैटर स्टोर करता है, और फिर होता है क्लोएका, जिससे फीकल मैटर बॉडी के बाहर रिलीज हो सकता है। फाइन, विथ ओपनिंग, और वो जो ओपनिंग है वो है क्लोएकल एपर्चर। फाइन, अब हमें कौन कौन से दूसरे ग्लैंड्स हैं जो याद रखने थे, ये तो हो गया एलिमेंट्री कैनल। अब ग्लैंड कौन से हैं, तो लीवर, पैंक्रियाज। लीवर क्या सीक्रेट करती है, तो भाई बाइल सीक्रेट करती है। पैंक्रिया क्या सीक्रेट करती है, तो पैंक्रियाटिक जूस सीक्रेट करती है। फाइन, लीवर से जो डक निकल के इसमें जाता है उसको क्या बोलेंगे, तो हिपैटिक डक। पैंक्रिया से होके जो डक डिओडेनम में आता है उसको क्या बोलेंगे, तो पैंक्रियाटिक डक्ट। फाइन, अब दोनों का सीक्रीशन डिओडेनम में आएगा, और डिओडेनम के अंदर प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म होगा। स्टमक में कौन से ग्लैंड होते हैं, तो भाई गैस्ट्रिक ग्लैंड होते हैं, वो HCl, पेप्सिनोजन और म्यूकस सीक्रेट करती हैं। HCl के फंक्शन हमने देखे, पेप्सिनोजन का फंक्शन देखा, वो प्रोटीन पे एक्ट करता है, प्रोटीन को ब्रेक डाउन करता है। फाइन, और म्यूकस स्टमक की वॉल को प्रोटेक्ट करता है। सो दिस इज ऑल दैट यू नीड टू रिमेंबर फॉर द डाइजेस्टिव सिस्टम, एंड इट्स वेरी easy, you can write it in your own words too. Fine, so this is all for today. We shall be meeting in the next class while we study about the respiratory, the circulatory and the reproductive system of the frog.